Hello everyone. In previous videos we have discussed about the electrolysis, process of electrolysis, quantitative aspect of electrolysis, that is Faraday's first as well as Faraday's second law, and the numerical that are based on the Faraday's laws. Now I am going to discuss about the products of electrolysis, and this is very unique and interesting topic, that are the products of electrolysis. Products of electrolysis. For understanding this topic, let us take a simple, very simple concept. Okay? I am starting again from the process of electrolysis, but I will give the brief of that. है ना? Now, I have a glass tank or any insulating material, that is electrolytic or electrolytic tank. Okay. Now in this tank, I am fitting two electrodes. I am inserting two electrodes and I am attaching a battery to it. So this will behave as an electrolytic tank, and I am introducing an electrolyte in this electrolytic tank. This may be of glass and may be of any other insulating material, but this tank must not be conducting one. है ना? This tank must not be conducting one. Now, here is an electrolyte. This electrolyte is AB, which AB means it will give A positive cation and B negative anion. B negative anion. Okay. As it is connected to positive terminal of battery, it will acquire positive charge, and as it is connected to negative terminal of battery, it acquire negative charge. And in the previous lecture, in the first lecture of electrolysis, I have discussed that it will behave as anode in electrolytic cell. Andhra Pradesh, you will have to remember, means anode at positive. Okay. And it will behave as a cathode. It will behave as a cathode. This will behave as anode, and this will behave as a cathode. This will behave as a cathode. Now, sir, product of electrolysis will be simple. Okay? Because two types of ions will be formed. Beta, which two type of ion will be formed? You are easily able to understand. Okay? Very easy, है ना? ठीक है? A positive. ठीक है? At cathode. Why it will move at cathode, beta? Why it will move at cathode? It will move at cathode because it is containing positive charge, and it will be attracted toward the negative electrode, that is the cathode. It will gain electron from there, and gaining of electron is called as what, beta? Reduction. Gaining of electron is called as what, beta? Reduction. It will convert into AB. It will convert into A. It will convert into A at anode. What will happen at anode? Sir, at anode, B negative will go. Which will go? B negative will go. Minus electron. Here is B. Here is B. Means product of electrolysis are A and B. Product of electrolysis are A and B. Getting what I am saying? What are the product of electrolysis? Bus, is it possible to a concept to be very basic? Okay? There may be certain exception, there may be certain rules. Okay? There may be a certain gocha, there may be a certain locha. Let us discuss. I am giving you the example of NaCl. Okay, what will be happen? Okay, I am giving you the example of NaCl. You will say, sir, at cathode, okay, NaCl is a positive B type electrolyte. A positive B type electrolyte. Okay, so Na positive, Cl negative. Na positive, Cl negative. Now, Na positive, Cl negative, how will it behave? Okay, at cathode. At cathode, which will move, beta? Okay, very good. At cathode, Na positive will move. Which will move? Na positive will move. It will gain electron and convert into Na. And at anode, Cl negative will go. Which go? Cl negative will go. It will lose electron, convert into Cl. But as we know, Cl
do not exist, Cl do not exist. So this process, the Cl will be formed like this, half Cl2. ठीक है, Cl exist in the form of Cl2, Cl exist in the form of Cl2. तो भी क्या हो गया, सिंपली तो केस है, तो भी क्या हो गया, सिंपली तो केस है, ठीक है। इसमें क्या कोई रामबाण है, हमें पता ही है, हाइड्रोजन आया तो H2 लगा देंगे, H नहीं लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्लोरीन आया तो Cl2 लगा देंगे, ऑक्सीजन आ गया तो O2 लगा देंगे, नाइट्रोजन आ गया तो N2 लगा देंगे, नाइट्रोजन आ गया तो N2 लगा देंगे। बेटा अगेन आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, इज इलेक्ट्रोलिसिस सो सिंपल? Is electrolysis so simple? Let us discuss further. Let us discuss further whether it is so simple or not. ठीक है, let us discuss further. Now, what I am giving to you is, what I am giving to you is this AB जो electrolyte है, it is in the form of aqueous form. सर पहले तो बात ही नहीं की, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्वस फॉर्म. व्हाट इज द मेंट बाय एक्वस फॉर्म? मीन्स AB is inculcated in water, AB as a solute and water as a solvent. Water as a solvent means this electrolytic tank along with the AB also contain the H2O. This AB along with the A positive B negative also contain the electrolytic tank has AB as well as the H2O as well as the H2O. ठीक है, H2O से I am also electrolyte, तो I will also break, I will also break. Okay, A positive B negative, H positive OH negative. बेटा if you are taking the aqueous form, which form beta? Aqueous form, there may be the interference, there may be the interference. Now what is the problem? What is the problem? ठीक है, here are in the electrolytic tank two type of ions are there. In the electrolytic tank two types of ions are there, ठीक है, two types of cations are there, ठीक है, and here in the electrolytic tank two types of anions are there, ठीक है. If anions and cations are of more than one type, if anions and cations are of more than one type, then what will happen? There will be a competition between two, ठीक है. Positive charge will move toward the cathode in the electrolytic cell. Positive charge will move toward the cathode in the electrolytic cell, ठीक है. It will move toward the cathode because cathode contain the negative charge. It will move toward the anode because anode contain the negative charge. Okay, ठीक है. अब it will move toward the cathode, ठीक है, but there is a competition between two, A positive and H positive. There is a competition. There is a competition. There is a competition between A positive and H positive. There is a competition between B negative and OH positive. B negative and there is a competition between these two and there is a competition between these two, ठीक है. These two want to go at the cathode and these two want to go at the anode. These two want to go at the anode. These two want to go at the cathode and these two want to go at the anode. At cathode which ion will go? Ab what I am asking you is, at cathode what process takes place? Either oxidation or reduction. This is the basic concept and you will have to remember, ठीक है. At the cathode reduction takes place. At the cathode reduction takes place and those substances are reduced whose SRP values are high. SRP याद रख लेना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन वाला है, ठीक है. तो रिडक्शन कैथोड पे कौन जाएगा? जिसकी एसआरपी वैल्यू हाई होगी, ठीक है. इन दोनों में से जिसकी एसआरपी वैल्यू हाई होगी बेटा वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा कैथोड पे. वो कहाँ जाएगा बेटा? इन दोनों में से जिसकी, अगर इसकी एसआरपी वैल्यू हाई है तो ये कैथोड पे जाएगा, अगर इसकी एसआरपी वैल्यू हाई है, ठीक है. अब दोनों की सेम तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो मेटल आयन होगा और ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की अपन को तो पता है जीरो है. क्या है? जीरो है. इसकी तो जीरो है बेटा. अगर इसकी नेगेटिव होती है, इसकी क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है, तो ये जाएगा कहाँ पे?
कैथोड पे, और अगर इसकी पॉजिटिव होती है तो ये जाएगा कहाँ पे बेटा, कैथोड पे, ये जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन टू एंड द नेट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, द नेट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द इलेक्ट्रोलिसिस डायरेक्टली डिपेंड ऑन द SRP वैल्यू, directly depend on the SRP value, standard reduction potential value, standard reduction potential value. Now here which will go at the anode, which will go at the anode, बेटा रिडक्शन होती है कैथोड पे, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन SRP वैल्यू लो होने की वजह से होती है। जिनकी SRP वैल्यू लो होती है ना बेटा उनकी होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है। मान लो इसकी SRP वैल्यू कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी क्या है बेटा ज़्यादा है, तो कम वाला क्या शो करेगा बेटा, कम वाला क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा। कम वाला क्या शो करेगा बेटा, ऑक्सीडेशन शो करेगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कम वाला क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में एक बात याद रखना बेटा, अगर तो SRP वैल्यू हाई है, ठीक है, तो वो आयन कैथोड की तरफ मूव करते हैं, वो आयन, ठीक है। पॉजिटिव आयन में 2 आयन्स की आपको SRP वैल्यूज होंगी, दी होंगी, ठीक है। जिसकी SRP वैल्यू हाई रहती है वो कहाँ मूव करते हैं बेटा, कैथोड की तरफ मूव करते हैं। और फिर अनायंस को जब आपने एनोड के लिए कंपेयर करना है, ठीक है, तो मानना ऐसा जाता है कि लो SRP वैल्यू वाला जाएगा, लो SRP वैल्यू वाला जाएगा। लेकिन कई एक्सेप्शंस बहुत देखने को मिलती हैं इसमें, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ओवर पोटेंशियल, इन द फॉर्म ऑफ ओवर पोटेंशियल, ठीक है। तो वो अपन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड में ओवर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे समझने वाले हैं कि एक्सेप्शंस अपन को इसमें बहुत मिलेंगी, ठीक है। बट जनरल क्या है बेटा, अगर तो SRP वैल्यू क्या है बेटा, हाई है, ठीक है। इन दोनों में से जिसकी भी कैथोड वाले रीजन में से जिसकी SRP वैल्यू, कैथोड पे पॉजिटिव आयन में से वो 2 पॉजिटिव आयन है, वो जाएगा जिसकी SRP, कैथोड पे कौन जाएगा बेटा, वो जाएगा जिसकी SRP वैल्यू क्या है बेटा, हाई है। जिसकी SRP वैल्यू क्या है, कैथोड पे वो जाएगा जिसकी SRP वैल्यू क्या है बेटा, हाई है। बेटा अब SRP मतलब TRP है ना, TRP, जिसकी TRP हाई होती है वो हाई कोर्ट पे जाता है ना, कहाँ जाता है, हाई कोर्ट में। यानी कि जिसकी SRP वैल्यू हाई होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वो कैथोड पे जाते हैं। याद रखने के लिए बता रहा हूँ बेटा, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और इसको मूल मंत्र भी मत मान लेना, याद रखने का तरीका है, क्योंकि इन एग्जामिनेशन वी जनरली गेट कन्फ्यूज्ड। कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी क्लियर बट यू विल हैव टू रिमेंबर द की पॉइंट्स ऑल्सो। SRP वैल्यू जिनकी हाई होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। ऑन द कंट्रारी एनोड वाला तो उल्टा डिस्कस करना है अपने को, एनोड वाला क्या करना है, उल्टा डिस्कस करना है। यानी कि जितना केस अपन सिंपल सोच रहे हैं, जितना केस अपन सिंपल सोच रहे हैं उतना सिंपल केस है नहीं, उतना सिंपल केस है नहीं, ठीक है। पहली चीज़ तो आपकी यही डिपेंड कर जाती है कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है या आपने एक्वस इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है। जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि वो आपने मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट लिया है कि एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लिया है। एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में वैरायटी ऑफ आयंस बनेंगे, देयर में बी कंपटीशन बिटवीन द डिफरेंट आयंस ड्यू टू डिफरेंट SRP वैल्यूज, ड्यू टू डिफरेंट SRP वैल्यूज वैरायटी ऑफ आयंस बनेंगे एंड दीज आयन में भी में इंटरफेयर द प्रोडक्ट्स फॉर्म, अलग अलग तरह के इंटरफेरेंस, झगड़ा, लड़ाइयाँ, ये वो है ना, चलता है, ठीक है। तो चलो ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो जाता है बेटा, कई बार क्या रहता है, ये तो जो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं ना बेटा अपन ज़्यादातर प्लैटिनम की ले लेते हैं, ठीक है। और CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ही इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन मैं एक आपको बात एक्स्ट्रा बता दूं जो अपने ही करिकुलम में ज़्यादा लिखी नहीं हुई, एक लाइन में NCERT में समअप कर दी है, लेकिन मैं इसको डिटेल में जब जाएंगे तो एक पूरी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। हम तो कह रहे हैं चलो ठीक है SRP वैल्यू पे भी डिपेंड कर गया, और क्या होगा, और भी बहुत कुछ होता है बेटा, ठीक है। जो आपने इलेक्ट्रोड लगा रखी है ना, यू हैव इंकलकेटेड द इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक विच इज ऑफ द ग्लास एंड यू हैव इंट्रोड्यूस द बैटरी एंड कनेक्टेड द पॉजिटिव टर्मिनल टू वन इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव टर्मिनल टू अदर इलेक्ट्रोड। बट इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वन आर द inert electrodes such as platinum 1 and other are the reactive electrodes. The case which I have yet discussed is a sort of the
इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड का काम क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना, कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, ठीक है। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड क्या कर जाती है बेटा, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाती है। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड क्या कर जाती है बेटा, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाती है, यानी कि ये पक्का क्या करने वाली है, इंटरफेयर करने वाली है, ठीक है। और जिसको अपन ये कह सकते हैं, इंटरफेयर को अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं घोचा, क्या बोलते हैं बेटा, घोचा, ठीक है। ये रिएक्टिव जो इलेक्ट्रोड है पक्का ही प्रोडक्ट्स में इंटरफेरेंस लाने ही वाली है, प्रोडक्ट्स में इंटरफेरेंस लाने ही वाली है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो 3 फैक्टर हैं बेटा जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैं अपनी सोच के परे आ सकते हैं। 3 फैक्टर्स ये हैं बेटा कि जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैं अपनी सोच के परे आ सकते हैं। जो अपन सोचते नहीं वो होगा, जो अपन सोचते नहीं वो होगा। वो फैक्टर कौन कौन से हैं, बेसिक में कंक्लूड कर रहा हूँ बेटा इस इंट्रो ऑफ अपने प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस में, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस है ना, पहले तो सिंपल बता रहा था मैं आपको, पहले मैं बता दिया था AB डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट हो गया। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, 3 चीज़ों पे डिपेंड करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है वो आपने मोल्टन फॉर्म में ले रखा है या आपने एक्वस फॉर्म में ले रखा है। एक्वस फॉर्म में ले रखा है। SRP वैल्यूज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, कैटायंस एंड एनायंस इस पे डिपेंड करेगा। SRP वैल्यूज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। फर्दर इसमें एक और इसका ही कॉन्सेप्ट है जो मैंने NaCl में डिस्कस करना है, एक्वस NaCl में, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल इन सर्टेन केसेस, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल भी हो सकता है, कौन सा बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल भी हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जो आपकी इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट है तो कोई नहीं, आपकी उम्मीद पे खरी उतरेगी, ठीक है। ये तीनों फैक्टर तो इसमें भी लगेंगे, लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रोड क्या है बेटा, रिएक्टिव है, आपकी इलेक्ट्रोड क्या है बेटा, रिएक्टिव है, दैट में इंटरफेयर। तो इस वीडियो में अपन ने बेसिक सीखा कि जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स हैं वो किन किन बातों पे क्या करेंगे बेटा, डिपेंड करेंगे। इसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्वेश्चन जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा उसमें आएगा, ठीक है। डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपने पढ़ना क्या है इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हूँ वो डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं बेटा, ठीक है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। मैं ये बाद में नहीं बताऊँगा कि ये क्या क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।